Good morning, students. Today we are starting with lesson 5 of chapter 1, that is calculus of vectors. Is the अपना बेटा आज का जो टॉपिक है that is evolution of circulation और physical meaning of curl. ਜਿਹੜਾ अपना previous lecture ਸੀ बेटा उस में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ curl ਕੀ ਹੈ. ਕਰਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ. ਕਰਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਲ ਇਜ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਲ ਹੈ, ਕਰਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਰਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ. ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਲ ਡਿਫਾਈਨਸ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਫਸਟ ਟੇਕ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਕਸ ABCD ਔਰ ਇਹ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ YZ ਪਲੇਨ 'ਚ ਪਿਆ. ਦੇਖੋ Y ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ Z ਐਕਸਿਸ YZ ਪਲੇਨ 'ਚ ਪਿਆ. ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ E, F, G ਐਂਡ H. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ E ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ Y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 0. ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲਟਾ A ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲਟਾ B ਹੈ. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ Y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ Z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ B/2. ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ F ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ F ਇਟਸੈਲਫ Z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ Z ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ Y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡੈਲਟਾ A/2. ਡੈਲਟਾ A/2 ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਡੈਲਟਾ A/2 ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ G ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, G ਦਾ this point is 0 and क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है तो डेल्टा B/2. सिमिलरली फॉर H ਇਹਦਾ Z कोऑर्डिनेट अपना 0 हो गया, Y कोऑर्डिनेट माइनस डेल्टा A/2 है क्योंकि ये इस साइड लाइक कर रहे हैं. ਤਾਂ अगर A कोई भी वैक्टर फील्ड है ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ A.dr ਫॉर A to B, B to C, C to D, D to A. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ. ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ A to B, B to C, C to D, D to A ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ A to B, B to C, C to D ਐਂਡ D to A. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫॉर A to B, ਦੈਨ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੋਮ A to B ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ A.dr ਦੇ ਲਈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ dr ਜਾਂ ਆਪਾਂ dl ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਲਾਈਨ ਡਿਸਟੈਂਸ. ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ A to B ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, A to B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਟੂ Y ਐਕਸਿਸ. A to B ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ Y ਐਕਸਿਸ. ਤਾਂ dr ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? dy j cap. ਸੋ ਆਪਣਾ dr ਕੀ ਹੈ? dr ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dy j cap. ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ A.dr. A ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ AX, AY ਐਂਡ AZ. dr ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? dy j cap. ਤਾਂ A.dr ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ J ਦੀ J ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ. J ਦੀ J ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ AY dy ਬਣ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? AY dy ਬਣ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ AY ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਫॉर ਸਮਾਲ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੇਸ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ
होएगी, क्योंकि रैक्टेंगुलर बॉक्स इज़ इनफाइनेटिजमली स्मॉल आपां ने कंसीडर किया है। तो ए वाई की वैल्यू अगर वो सारी लाइन ते कॉन्सटेंट है तो जो वैल्यू दे मिड पॉइंट ते है उही वैल्यू आलमोस्ट हर एक पॉइंट ते होगी। इस करके आपां इहनूं बाहर ले लिया फॉर द पॉइंट ई। डी वाई की है, डी वाई लेंथ सीगी, डी वाई इहदा एक स्मॉल पोर्शन है तो बट वो टोटल सारा की है दैट इज़ डेल्टा ए। वो सारा अपने कोल की आ गया डेल्टा है। मतलब तुसीं इहदी इंटीग्रेशन जो करते हो तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि तुसी जो इहदा स्मॉल पॉइंट चूज़ किया है वो सारी लेंथ की है, इंटीग्रेशन करके वो सारी लेंथ ऑबटेन होगी तो वो डेल्टा ए है। हुण अगर करली ए वाई अपॉन करली जैड रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वाई है अलोंग जैड डायरैक्शन, मतलब देखो ये कहता ए वाई च चेंज हो रहा है विद रिस्पैक्ट टू जैड। आपां ए टू बी मूव कर रहे हैं, ए टू बी जो आपां मूव कर रहे हैं तो चेंज किहदे च होऊगा बेटा, उहदे वाई कंपोनेंट च ही होऊगा। क्लीयर है। जिस तरह मतलब सपोज करो आपां फील्ड चूज़ कर रहे हैं, वो फील्ड दी डायरैक्शन जिहड़ी है अगर वो ए टू बी है तो वाई चेंज होगा विद रिस्पैक्ट टू जैड। तो करली ए वाई अपॉन करली जैड की है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वाई अलोंग जैड डायरैक्शन। then y component of ay vector field at e is e पॉइंट ते उदा वैक्टर फील्ड दा y कंपोनेंट की होगा, क्योंकि अगर असी मूवमेंट देखते हैं, अगर असी रोटेशन देख रहे हैं तो वो तो ये इधर कंपोनेंट या इधर कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं। वो चेंज आपां किस तरह देखांगे कि ई पॉइंट ते कंपोनेंट की बनूगा कि उहदी एक्चुअल च उस फील्ड दी इहदे सेंटर पॉइंट ते वैल्यू किन्नी सी। इनिशियली आपां एज्यूम कर रहे हैं कि फील्ड इज़ एट सेंटर पॉइंट। अगर वो सेंटर पॉइंट ते पे है, ओ पॉइंट ते पे है तो उहदा उस पॉइंट ते वैल्यू की है। हुण क्योंकि असी नैगेटिव डायरैक्शन च देख रहे हैं, नैगेटिव डायरैक्शन च तो माइनस करली ए वाई अपॉन करली जैड डेल्टा बी अपॉन 2। देखो बेटा डेल्टा बी ये सारा डेल्टा बी है, असी हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए देख रहे हैं तो यह डेल्टा बी बाय 2 बन गया। क्लीयर है। ये जिहड़ा ए वाई ई कंपोनेंट है इनू असी 3 नंबर इक्वेशन च पुट कर देने तो साडे कोल इंटैग्रल की वैल्यू कितनी आ गई। ए वाई ई की जगह आ सारी वैल्यू पुट करनी है, ए वाई ओ डेल्टा ए माइनस करली ए वाई अपॉन करली जैड डेल्टा ए डेल्टा बी बाय 2। सिमिलरली अगर असी सैकेंड इंटैग्रल देखते हैं, सैकेंड इंटैग्रल का मतलब है कि फील्ड की जिहड़ी मूवमेंट है दैट इज़ फ्रॉम बी टू सी। अगर असी बी टू सी के लिए देखते हैं, क्योंकि हुण असी पॉजिटिव डायरैक्शन च मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरैक्शन हुण इहदा जैड कंपोनेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पैक्ट टू वाई। आपां बी टू सी जा रहे हैं ना, जैड एक्सिस दे पैरेलल है तो सैकेंड कंपोनेंट की होगा ए जैड ओ डेल्टा बी प्लस, क्योंकि हुण जैड च चेंज हो रहा है विद रिस्पैक्ट टू वाई डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन 2। सिमिलरली थर्ड इंटैग्रल है फ्रॉम सी टू डी। हुण देखो बेटा ये नैगेटिव डायरैक्शन होगी सी टू डी, इधर पॉजिटिव सी, ये भी पॉजिटिव सी, ये सी टू डी की हो गया नेगेटिव हो गया तो अपना ये कंपोनेंट की हो जाएगा नेगेटिव माइनस ए वाई ज़ीरो डेल्टा ए माइनस करली ए वाई अपॉन करली जैड डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन 2। क्लियर है। सिमिलरली द फोर्थ पार्ट की होगा डी टू ए, नेगेटिव डायरैक्शन होगी। नेगेटिव डायरैक्शन का मतलब है माइनस ए जैड ओ डेल्टा बी। हुण नैगेटिव डायरैक्शन सी, नैगेटिव इहदा कोआर्डीनेट सीगा तो ये बेटा की बन गया, ये प्लस बन गया इत्थे प्लस करली ए जैड अपॉन करली वाई डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन 2। कहने का मतलब ये है कि जदों तुसी मूवमेंट देखोगे तो तुसी मूवमेंट पॉजिटिव साइड हो रही है, नाल उहदा कोआर्डीनेट देखना है। देखो इस केस च की सी, आपां डायरैक्शन तो ए टू बी है बट कोआर्डीनेट की सीगा नैगेटिव सी। इत्थे डायरैक्शन देखी, इत्थे डायरैक्शन ते कोआर्डीनेट दोनों देखने ने, प्लस माइनस माइनस हो गया। बी टू सी देख रहे हैं, पॉजिटिव डायरैक्शन है, पॉजिटिव ही कोआर्डीनेट है, इस करके दोनों पॉजिटिव सी। थर्ड केस च सी टू डी नैगेटिव डायरैक्शन है, पॉजिटिव कोआर्डीनेट है, नैगेटिव डायरैक्शन है, पॉजिटिव कोआर्डीनेट सी, पॉजिटिव ते नैगेटिव नेगेटिव हो गया।
इधर की है डायरेक्शन भी नैगेटिव है, कोऑर्डिनेट भी नैगेटिव है, तो माइनस ए जैड ओ डेल्टा भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरह बेटा तुसी ये जिहड़े मतलब प्लस माइनस दे साइन ने ना मेन प्रॉब्लम बच्चों नूं इत्थे ही आंदी है। तो ये चीज़ां तुसी इहदे विच ध्यान दे नाल ऑब्जर्व करनियां ने। सो जिहड़े आपां ये 4 इंटैग्रल्स फाइंड आउट कर ले, इन्हां नूं आपां कलैक्ट कर लैंदे आ। क्यों कलैक्ट किया बेटा? क्योंकि आपां टोटल इंटैग्रल कढ़ना सी A to B, B to C, C to D, D to E। तो ये 4 इंटैग्रल 1 2 3 आपां ने फाइंड आउट कर ले। ये सारियां टर्म्स नूं आपां कलैक्ट कर लैंदे आ। जदों आपां कलैक्ट कर रहे हैं, देखो ये सेम बन गई, एक प्लस दी है एक माइनस दी है। सिमिलरली दिस प्लस दी है तो माइनस दी है। उस तो इलावा ये देखो ये दोनों माइनस दियां ने, ये दोनों प्लस दियां ने। ये माइनस माइनस एक्चुअली च प्लस हो गया। ये 1/2 पे है, मतलब हाफ हाफ वैल्यू पई है, तो प्लस होके की बन जूगी 1 बन जूगी। मतलब करली ए वाई पॉन करली जेड डेल्टा ए डेल्टा बी बन गया। क्लीयर है? माइनस माइनस प्लस हो गया, पर साइन तो माइनस ही रहूगा। सिमिलरली इत्थे भी हाफ वैल्यू है, भी हाफ वैल्यू 1/2 1 बन जूगा। करली ए जैड पॉन करली वाई डेल्टा ए डेल्टा बी आपां ने कॉमन ले लिया। हुण लेंथ इंटू ब्रैथ हो गया। लेंथ इंटू ब्रैथ नूं आपां की लिख सकते हैं? एरिया। करली ए जैड पॉन करली वाई माइनस करली ए वाई पॉन करली जैड बन गया। क्लीयर है? ये अपनी इत्थे तक इक्वेशन बन गई सारी। ये सारा किहदे बराबर सी? लाइन इंटैग्रल दे बराबर सी। उस तो बाद अगर असी कर्ल दी डेफिनेशन देखिए, जो अपनी बेसिक डेफिनेशन सीगी कर्ल दी डेफिनेशन च की सी? आई कैप करली ए जैड पॉन करली वाई, मतलब मैट्रिक्स नूं सॉल्व किया होया है। हुण मैट्रिक्स नूं जे तुसी ध्यान दे नाल देखो, आपां दो इक्वेशनस नूं कंपेयर करिए। ये वाला जिहड़ा पार्ट है ये इहदे फर्स्ट कंपोनेंट दे नाल मैच करदा है। ये वाला जिहड़ा पार्ट है ये डेल क्रॉस ए दे एक्स कंपोनेंट दे नाल मैच करदा है। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा लाइन इंटैग्रल है ए डॉट डी आर, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इस वैल्यू की बजाय डेल क्रॉस ए दा एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जिहड़ा पार्ट है दैट इज़ एक्स कंपोनेंट ऑफ डेल क्रॉस ए। तो आप इहनूं मॉडिफाई करके डेल क्रॉस ए एक्स डेल्टा एस दे नाल भी लिख सकते हैं, मतलब ये एक्स कंपोनेंट है कर्ल ए दा। नेक्स्ट है सिंस वेक्टर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज़ गिवन बाय राइट हैंडेड थंब रूल। देखो एरिया जिहड़ा है इस रेक्टेंगल दा एरिया तो है डेल्टा ए डेल्टा बी, बट इहदी डायरैक्शन की होगी? डायरैक्शन मैं तुहानूं पहलां भी दस्सी है कि जिस प्लेन दे विच ऑब्जेक्ट वो एरिया लाई करदा है उहदी डायरैक्शन उहदा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगी। दैट मीनस कि इस रेक्टेंगल की जिहड़ी डायरैक्शन होगी वो आई कैप होगी। तो ये एरिया वैक्टर की डायरैक्शन की होगी? डेल्टा एस आई कैप होगी। तो इस इक्वेशन में आपां की लिखांगे? डेल क्रॉस ए डॉट डेल्टा एस अगर वैक्टर फॉर्म च लिखते हैं, इधर करली ए जैड पॉन करली ए वाई पॉन करली जैड दा एक्स कंपोनेंट एंड डेल्टा एस आई। क्लीयर है? या फिर इनू आपां की लिख सकते हैं? डेल क्रॉस एक्स डॉट डेल्टा एस। ये सारा अपने कोल किहदे इक्विवेलेंट है? लाइन इंटैग्रल दे इक्विवेलेंट है। दैट मीनस ए डॉट डी आर नूं अगर असी वैक्टर फॉर्म च लिखना चाहते हैं तो वो डेल क्रॉस ए डॉट डेल्टा एस हो। हुण सिंस एरिया इज़ इनफाइनेटिजमली स्मॉल एंड इफ इट अप्रोचेस टू जीरो, तो आप इतने लिमिट लगा देने हैं। लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो 1/डेल्टा एस ए डॉट डी आर इज इक्वल टू 1/डेल्टा एस डेल क्रॉस ए डॉट डेल्टा एस नूं आपां ने की लिख लिया? उहदा एन कैप एंड डेल्टा एस, मतलब वह मैगनीट्यूड तो वो डायरैक्शन। सो डेल क्रॉस ए एन कैप किहदे बराबर आ गया? 1/डेल्टा एस ए डॉट डी आर दे बराबर आ गया। क्लीयर है? सो ए डॉट डी आर मतलब लाइन इंटैग्रल ऑफ वैक्टर फील्ड। लाइन इंटैग्रल ऑफ वैक्टर फील्ड, क्योंकि असी इहदा डेल क्रॉस ए नूं बेटा जदों डिफाइन किया सी, आपां ने ये चीज़ दसी सी कि जिहड़ी कर्ल है, कर्ल सानू सर्कुलेशन दसदी है या रोटेशन दसदी है। आपां ने ये चीज़ प्रूव करती है इत्थे कि जिहड़ा लाइन इंटैग्रल आंदा अपना, क्योंकि आपां ने शुरू कित्थों कीता सी? आपां ने शुरू किया सी लाइन इंटैग्रल तो, कि अगर असी लाइन इंटैग्रल देखते हैं किसी वैक्टर फील्ड का, तो एक्चुअली जो लाइन इंटैग्रल सानू किस चीज़ वाल लै जांदा है? वो सानू रोटेशन या उसकी सर्कुलेशन दसदा है, क्योंकि इस आर्टिकल च आपां ने प्रूव करता कि लाइन इंटैग्रल इज़ इक्वल टू सर्कुलेशन
पर यूनिट एरिया। क्लियर है। दस इक्वेशन 1 shows that circulation of vector field A per unit area will be maximum when angle between curl of vector and n cap is 0। देखो ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਟਰਬਾਈਨਸ ਦੀ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰਬਾਈਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉਸ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। पर ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਲ ਕ੍ਰਾਸ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਟ ਐਨ ਕੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਡੈਲ ਕ੍ਰਾਸ ਏ ਡਾਟ ਐਨ ਕੈਪ, ਡਾਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਹੋਊਗਾ, मतलब फील्ड ते उस प्लेन ते जिहदे ते उहदा इफेक्ट है, अगर उहदे विच एंगल मतलब वो फील्ड दे पैरेलल डायरैक्शन च पऊगा, उहदी ओरीएंटेशन उहदे पैरेलल होऊगी, तां उस केस च सर्कुलेशन जिहड़ी होऊगी वो मैक्सिमम होऊगी। नैक्सट है बेटा, नैक्सट इहदे नाल रिलेटेड है स्टोक्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भी स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम पहली गल तो आपां एक रिलेशन दिंदी है, दैट इज़ बिटवीन लाइन इंटैग्रल एंड सरफेस इंटैग्रल, लाइन इंटैग्रल एंड सरफेस इंटैग्रल। स्टेटमेंट देखो, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटैग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड A अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व C इज इक्वल टू द सरफेस इंटैग्रल ऑफ A ओवर एन ओपन सरफेस S बाउंडेड बाय कर्व C। ध्यान नाल देखो बेटा डेफिनेशन, लाइन इंटैग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, एक वैक्टर फील्ड दा लाइन इंटैग्रल ओवर द क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू कर्ल ऑफ दैट फील्ड ओवर द ओपन सरफेस। हुण तुहानूं बेटा इत्थे कुछ चीज़ां क्लीयर होनियां चाहिदियां ने, वो क्लैरिटी दे विच की है। देखो ये कह रहे कि क्लोज्ड कर्व सी, लाइन इंटैग्रल होवे क्लोज्ड कर्व सी दे लई, ते जिहड़ा तुहाडे कोल सरफेस एरिया होए वो होए ओपन। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, पहली गल तो मैं तुहानूं ओपन सरफेस एरिया ते क्लोज्ड सरफेस एरिया दे विच मतलब समझा रही हाँ। देखो बेटा मैंने जिस तरह एक ऑब्जेक्ट चूज़ किया है ताकि तुहानूं ईजिली समझ आ जाए, जिस तरह ये छोटा जा एक मटका है, ठीक है, एक ओपन सरफेस की एग्जाम्पल है। जे आपां अपनी डेफिनेशन नूं ध्यान नाल देखिए, ये कहंदा क्लोज्ड कर्व ओपन सरफेस, क्लोज्ड कर्व, आ क्लोज्ड कर्व है जिहड़ा तुसीं DR चूज़ कर रहे हो बेटा, DR दिस DR, इनू आपां DLB लिख सकते हैं, इनू DLB लिख सकते हैं, ये अपनी क्लोज्ड कर्व है। ये ओपन सरफेस एरिया कह रहा है, ये ओपन है, ओपन सरफेस एरिया मतलब ये इधर भी इस साइड भी सरफेस एरिया है, सरफेस है, ये इनसाइड भी सरफेस है। क्लीयर है, ये इनसाइड भी सरफेस है। हुण देखो जिस तरह मैंने इस केस च यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लीती है, ये क्लोज्ड कर्व मैंने एंटी क्लॉकवाइज लीती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि यदि रोटेशन मैं इस तरह देख रही हाँ, रोटेशन इस तरह देख रही हाँ, तो ये मेरा जो थंब है, ये मेरा थंब किधर नूं पॉइंट आउट कर रहा है, थंब बाहर नूं पॉइंट आउट कर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब कि असीं ਇਹਦੇ ਚ सरफेस एरिया चूज़ करांगे बाहर वाला। क्लीयर है। हुण अगर मैं यही क्लॉकवाइज रोटेशन चूज़ कर ला, क्लॉकवाइज इस तरह क्लॉकवाइज रोटेशन चूज़ कर ला, तो मेरा थंब किधर नूं पॉइंट आउट कर रहा है, मेरा थंब इनसाइड पॉइंट आउट कर रहा है। देखो बेटा ध्यान नाल, इनसाइड पॉइंट आउट कर रहा है, ਇਹਦਾ मतलब फिर असीं ਇਹਦਾ अंदर वाला सरफेस चूज़ करांगे। कहने का मतलब ਜਿਹੜਾ ओपन सरफेस होगा एक्चुअली च ਉਹਦਾ इनसाइड आउटसाइड सरफेस ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, बट वो डिपेंड करूगा कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ क्लोज्ड कर्व ਦੀ रोटेशन है वो रोटेशन किधर ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ क्लोज्ड कर्व ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, दिस क्लोज्ड कर्व, दिस इज़ क्लोज्ड कर्व ऑफ दिस सरफेस, वो क्लोज्ड कर्व आह वाली है सारी। क्लीयर है। जिमें च DR कह रहे हैं, ये DR की है, DR इज़ दिस, ਇਹਦਾ स्मॉल पोर्शन है, DR ਇਹਦਾ स्मॉल पोर्शन है, ये सारे क्लोज्ड पाथ ਦਾ। ये तो सी बेटा ओपन सरफेस। हुण अगर तुसी क्लोज्ड सरफेस देखो, क्लोज्ड सरफेस की होगा, जिस तरह मेरे को बॉल है, जिस तरह मेरे को बॉल है बेटा, ये बॉल की है क्लोज्ड है, ठीक है जी।
सारा एक क्लोज्ड सरफेस की एग्जाम्पल है। मीनस ये की है कि सपोज करो तुसी इत्थे कोई सरफेस चूज कर लिया, स्मॉल सरफेस चूज कर लिया, यदि कोई ना कोई डायरैक्शन होगी। सिमिलरली एग्जैक्टली ये ओपोजिट एक सरफेस एलीमेंट होगा जिहड़ा कि इहनूं कैंसल करूगा, जिहड़ा कि इहनूं कैंसल करूगा। कहने का मतलब है कि एक क्लोज्ड सरफेस ते आपां स्टोक्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। एक क्लोज्ड सरफेस ते स्टोक्स थ्योरम आपां नहीं अप्लाई कर सकते, तां करके अपनी थ्योरम च इत्थे की आंदा है ओपन सरफेस। पर जिस तरह हुणे मटका सी, मीनस सपोज करो कि मैंने दे इस साइड ते एक सरफेस एलीमेंट चूज कर लिया, एक सरफेस एलीमेंट चूज कर लिया, पर ये एग्जैक्टली ओपोजिट इत्थे कोई सरफेस एलीमेंट नहीं है, तो ये कैंसल नहीं होगा। यदि कोई ना कोई आपां नूं जिहड़ी वैल्यू है वो ऑबटेन होगी। तो बेटा ध्यान रखना है कि स्टोक्स थ्योरम इज अप्लाइड टू ओपन सरफेसिस बाउंड बाय अ क्लोज्ड कर्व। क्लीयर। तो बेटा देखो आप प्रूफ करते हैं। प्रूफ च अपना वही है, आप जो पिछला आर्टिकल किया आप सीधा उसका रिजल्ट लेना है। सपोज करो कि यू हैव क्लोज्ड कर्व सी बाउंडेड बाय बाउंड्री सी एंड इट हैज़ ओपन सरफेस एस। तो वो आप ओपन सरफेस नू बेटा डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ सैगमेंट्स दे विच, नंबर ऑफ पार्ट्स नू डिवाइड कर लिया। तो अगर असी इहदा फर्स्ट पार्ट चूज करते हैं, फर्स्ट बॉक्स जिहड़ा फर्स्ट चूज कर लिया, तो वो क्लोज्ड कर्व सी दे लई दिस ए बी सी डी जिहड़ा आपां ने चूज किया है उहदे लई ए डॉट डी आर, सॉरी इट्स डी आर, ए डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डॉट डेल्टा S1। ये आपां ने पिछे सारा बेटा पढ़िया है, हुणे सारा एज इट इज़ मैं इक्वेशन लिख रही हाँ। फिर ये ध्यान रखना है कि इत्थे इनीशियली आपां ने सरफेस इंटैग्रल नहीं पाना, क्योंकि ये आपां एक एलीमेंट दे लई कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर सैकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फॉर एनथ पार्ट। ये सारी इक्वेशन लिखण तो बाद आपां की करांगे, सारिਆਂ ਨੂੰ लैफ्ट राइट साइड्स ਨੂੰ एडिशन कर ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ऐड कर रहे हैं लैफ्ट च लैफ्ट राइट ਦੇ ਵਿੱਚ राइट, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮੀਸ਼ਨ i इज इक्वल टू 1 to n a डॉट डी आर इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n डेल क्रॉस a डॉट डेल्टा डी एस आई। ਹੁਣ देखो बेटा ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला पार्ट है, दिस पार्ट ये 1 ते 2 मैं थोड़ा जा एक्सट्रापुलेट कर रही हाँ। 1 ते 2 सपोज करो कि आप इत्थे फील्ड की रोटेशन देख रहे हैं, तो जो आप फील्ड की रोटेशन देखते हैं तो जो आप इस साइड मूव कर रहे हैं यदा कंपोनेंट हो गया, मान लो ए ते डी आर, ए ते डी आर सपोज करो इस साइड दोनों सेम डायरैक्शन च ने, तो ए डी आर कॉस थीटा बन गया, ए डी आर कॉस 0 बन गया, कॉस 0 इज़ 1, ए डी आर बन गया। ये आप इहदी गल कर रहे हैं, पर जदों असी इहनूं देखांगे दिस पार्ट इहदे विच की होगी, दी डायरैक्शन ऑपोजिट होगी। ये की बन गया ए डी आर कॉस 180 बन गया, तो ये की हुंदा माइनस ए डी आर कॉस 180 इज़ माइनस। मतलब जदों असी ये दो कंपोनेंट्स नू प्लस करांगे ਇਹਦਾ मतलब की है आंसर की आ गया अपने कोल 0 आ गया। इसी तरह बेटा जो तुसी फरदर इनू एक्सटेंड करी जाओगे, क्योंकि इसी नंबर ऑफ एलीमेंट्स बनाए हुए ने, तो ये जो अपना कॉमन फेस है ये कॉमन फेस ते एलजैब्रिकली कलैक्ट होके कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे। सिमिलरली फॉर अदर बाकियां भी जो तुसी देखोगे तो बाकी भी एवें आ वाली बाउंड्रीज ने जिहड़ियां कैंसल होई जाणगियां। अल्टीमेटली साडे कोल इहदी जिहड़ी आउटर बाउंड्री है, आउटर कर्व है, सिर्फ वो रह जूगी। दैट मीनस कि सानू फिर इत्थे सबमिशन की ज़रूरत नहीं हैगी, वो सबमिशन साडी खत्म हो गई, साडी जिहड़ी सिर्फ बाउंड्री कर्व है, बाउंड्री कर्व रह गई। तो असी सबमिशन का साइन रिमूव करता, अपनी राइट हैंड साइड की है वही डेल क्रॉस ए डेल्टा एस आई लेट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। स्मॉल साइज अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ सैल्स ज़्यादा बन गए तो एरिया अप्रोचेस टू 0। in that case when n approaches to infinity delta s approaches to 0 then we can change summation sign into integration sign। तो ये अपनी स्टोक्स थ्योरम है बेटा। हुण ये ध्यान रखना कि दिस इज़ फॉर ओपन सरफेस, आपां इत्थे कोई क्लोज का साइन नहीं पाया। जे ये क्लोज सरफेस के लिए देखते हैं यदा आंसर अपने कोल की आऊगा 0 आऊगा। वो 0 आने का रीज़न है बेटा मैं तुहानूं दस्सिया कि क्लोज्ड सरफेस के लिए जिहड़ा तुसीं सरफेस एलीमेंट चूज करते हो डी एस, ये डी एस तो इन्हां दीयां डायरैक्शनस ने जिहड़ियां
ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ 4 ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ। ਥੈਂਕਸ।